بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمع اور تفریق کا جو عمل ہے وہ ہم اچھی طرح سیکھ چکے ہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ضرب اور تقسیم۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اکائی ہندسے کی اکائی ہندسے سے ضرب جب ہم کرتے ہیں، جیسے اگر ہم کو 4 کو 3 سے ضرب کرنا ہے تو 3 چوک 12۔ اگر ہم اکائی ہندسے کی دہائی ہندسے سے ضرب کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہم کیا کرتے ہیں، پہلے 3 کو 2 سے ضرب کرتے ہیں، 3 ضرب 2 جواب آیا 6، یہاں لکھ دیے۔ پھر 3 کو 1 سے ضرب کرتے ہیں، 3 ضرب 1 جواب آیا 3، تو اس کو ہم یہاں اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اکائی عدد کو ہم اگر 3 ہندسی عدد سے ضرب دینا چاہیں تو پہلے ہم 3 کو 4 سے ضرب دیں گے، 3 چوک 12۔ 12 کا یہ جو 2 ہے اکائی کا ہندسہ وہ یہاں لکھیں گے، اور 1 جو رہے گا جو ہمارا باقی میں رہے گا۔ پھر 3 کو 5 سے ضرب دیں گے، 3 پنجے 15، 15 میں یہ 1 کو جمع کریں گے تو کتنا ہوا 16۔ یہاں پر بھی 16 کا 6 لکھیں گے اور 1 رہے گا باقی۔ پھر 3 دونی 6، 3 ضرب 2 3 دونی 6، اور یہ 6 میں پھر ہم یہ جو حاصل کا ہے باقی جو ہے اس کو جمع کریں گے تو یہ ہوا 7۔ یہ ہوئی اکائی ہندسے کی، اکائی ہندسے سے، اکائی ہندسے کی دہائی ہندسے سے، اور اکائی ہندسے کی سینکڑا کے ہندسے سے ضرب۔ اسی طریقے سے اگر ہم دہائی کے ہندسے کو اگر ضرب دینا چاہیں، جیسے ہم 24 سے اگر 512 کو ضرب دینا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، پہلے ہم 4 کو 2 سے ضرب دیں گے، 4 دونی 8۔ یہاں حاصل کا کچھ نہیں ہے، اکائی ہندسہ ہے تو وہ جیسا کا ویسا لکھ دیں گے۔ پھر 4 کو 1 سے ضرب دیں گے، 4 ایک کم 4، اس کو بھی ایسے ہی لکھ دیے۔ پھر 4 کو 5 سے ضرب دیں گے، 4 پنجے 20، تو یہ پورا 20 کا 20 یہاں لکھ دیں گے۔ جب ہم دہائی کے ہندسے سے ضرب دینا شروع کرتے ہیں تو دہائی کے ہندسے کو یہاں پہ لکھتے ہیں، یعنی جب ہم 2 سے 2 کو ضرب دیں گے، 2 دونی 4، تو 4 کو ہم دہائی کے ہندسے کے نیچے لکھیں گے۔ یہ ہمارا اکائی کا ہندسہ ہے، یہ دہائی کا ہندسہ ہے، یہاں پر کچھ نہیں لکھیں گے، یا یہاں پر آپ 0 لکھیں گے۔ پھر 2 ایک کم 2، 2 سے 1 کو ضرب کریں گے، 2 ایک کم 2، پھر 2 سے 5 کو ضرب کریں گے، 2 پنجے 10، اور پھر اس کو کریں گے جمع۔ 8 اور 0 کی جمع 8، 4 اور 4 کی جمع 8، 0 اور 2 کی جمع 2، 2 اور 0 کی جمع 2، اور 1 کی جمع 1۔ تو اس طریقے سے ہم ایک ہندسی اور 2 ہندسی اعداد کی ضرب کرنا جانتے ہیں۔ اور اب جو ہم پڑھیں گے وہ ہے 3 ہندسوں کی 3 ہندسوں سے ضرب۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ ضرب کا عمل کر رہے ہیں تو آپ کو پہاڑے اچھی طریقے سے آنا چاہیے۔ بالفرض اگر آپ کو پہاڑے نہیں آتے ہیں تو آپ کو گنتی تو آتی ہے، تو پہاڑے بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ تو پہلا طریقہ جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہاں پر گنتی لکھیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اب یہ 1 میں 1 جمع کیجیے، پھر 2 میں 2 جمع کیجیے، 3 میں 3 جمع کیجیے، 4 میں 4 جمع کیجیے، 5 میں 5 جمع کیجیے، 6 میں 6 جمع کیجیے، 7 میں 7 جمع کیجیے، 8 میں 8 جمع کیجیے، 9 میں 9 جمع کیجیے، اور 10 میں 10 جمع کیجیے۔ جمع کا عمل آپ کو اچھی طریقے سے آتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد میں ایک کو جمع کرے تو 2، 2 اور 2 کو جمع کرے تو 4، 3 اور 3 کو جمع کرے تو 6، 4 اور 4 کو جمع کیے تو 8، 5 اور 5 کو جمع کیے تو 10، 6 اور 6 کو جمع کیے 12، 7 اور 7 کو جمع کیے 14، 8 اور 8 کو جمع کیے 16، 9 اور 9 کو جمع کیے 18، 10 اور 10 کو جمع کیے تو 20۔ یہ آپ کا تیار ہوا 2 کا پہاڑا۔
अब अगर आपको 2 का पहाड़ा आता है तो आप 2 का पहाड़ा लिखिए और फिर एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको जमा कीजिए। 2 और 1 3, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 8 और 4 12, 10 और 5 15, 12 और 6 18, 14 और 7 21, 24, 27 और 30। ये आपका बना 3 का पहाड़ा। तो इस तरीके से आप जमा के अमल के जरिए पहाड़े बना सकते हैं। आपको जो पहाड़ा याद है पहले वो पहाड़े को लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इस तरीके से 1 2 3 4 लिख लीजिए और यहाँ पर अमल कीजिए जमा का। ये दोनों के बीच में जमा का अमल कीजिए तो उसके बाद वाला पहाड़ा तैयार हो जाता है। जो भी पहाड़े आपको याद है, यहाँ पर अगर आपको 2 का पहाड़ा याद है और 3 का याद नहीं है तो इस तरीके से जमा का अमल कीजिए और आप 3 का पहाड़ा बना लीजिए। जब ये 3 का पहाड़ा बन जाए तो 3 के पहाड़े को आप याद कीजिए। तो आपको 10 तक, कम से कम 20 तक पहाड़े याद होना चाहिए। और अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो पहले इसको पहाड़े को याद करने की कोशिश कीजिए। जब पहाड़े याद होंगे तब ये सवालात हल करना आपको ज़्यादा आसान लगेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दिए हुए अदद को 3 हिस्सों तक के अदद से किस तरह से ज़रब करते हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ अदद है वो सैकड़ा भी हो सकता है, मतलब 3 हिंसी अदद भी हो सकता है, 4 हिंसी भी हो सकता है, 5 हिंसी भी हो सकता है। तो पहले हम 3 हिंसी अदद को 3 हिंसी अदद से ज़रब करेंगे। यहाँ पर ये जो अदद होता है, अगर हम 3 हिंसी को लिखें, यहाँ पर ये इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है मजरूब फिया, जिससे हम ज़रब कर रहे हैं, और जिसको कर रहे हैं वो कहलाता है मजरूब। तो हम 3 4 1 2 इसको ज़रब करते हैं 3 1 2 से। पहले हम 3 हिंसी ही लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 2 को 2 से ज़रब करेंगे। 2 को 2 से ज़रब करें, जवाब कितना आया 4। 2 को 1 से ज़रब करेंगे, 2 1 कम 2, ये जवाब यहाँ लिखेंगे 2। फिर 2 को 4 से ज़रब करेंगे, 2 चौक 8, ये 8 को यहाँ लिख देंगे। अब ये वाला जो था 2 इकाई है, ये इकाई है सवाल में, ये इकाई का हिस्सा कितना है 2, दहाई का हिस्सा कितना है 1 और सैकड़े का हिस्सा कितना है 3। तो जब हम दहाई का हिस्से से ज़रब करेंगे तो ये इकाई के हिस्से को छोड़ देंगे, यहाँ की जगह खाली रखेंगे। फिर 1 से 2 को ज़रब दिए, 1 दूनी 2। फिर 1 से 1 को ज़रब दिए, 1 1 कम 1। फिर 1 से 4 को ज़रब दिए, 1 चौक 4। ये हिंसे के नीचे हिंसा इस तरीके से आना चाहिए। अब हम सैकड़े से ज़रब दे रहे 3, तो इकाई का हिस्से भी छोड़ देंगे, दहाई का हिस्सा भी छोड़ देंगे। 3 से 2 को ज़रब दिए, 3 दूनी 6। 3 से 1 को ज़रब दिए, 3 1 कम 3। 3 से 4 को ज़रब दिए, 3 चौक 12। अब इसको करेंगे जमा। 4 को जमा करें तो कुछ नहीं है, तो 4 ही, 2 और 2 4, 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15 का 5, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 3 8, 2 का 2 और 1 का 1। ये आया आपका जवाब। ये लिखने का तरीका, ये लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ में आए कि स्टेपिंग क्या है, मरहला क्या है, एक के बाद दूसरा मरहला कौन सा और दूसरे के बाद तीसरा मरहला कौन सा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम
3 हिंसी अदद लेते हैं मजरूफिया, और यहाँ 4 हिंसी अदद से ज़रब देते हैं। अब ये मरहले आपको याद हो गए, समझ में आ गए। अब यहाँ पर हम पहले 2 से ज़रब करेंगे, 2 से 9 को ज़रब करेंगे, तो 2 9 18। 18 जब हम लिखते हैं तो 18 का ये जो 8 है यहाँ पर लिखेंगे, और ये 1 जो है ये हमारा हासिल का रहेगा। फिर 2 7 14, 14 में ये 1 मिलाएंगे तो हुआ 15, फिर 1 हासिल का बचा, हासिल का हम ये यहाँ लिख रहे हैं। फिर 2 से 6 को ज़रब दिए, 2 6 के 12 और ये 1 13, 13 का 3, फिर ये हासिल का बचा। फिर 2 पंजे 10, 10 में ये 1 जमा करे, अब यहाँ लिख दिए पूरा 11, क्योंकि 5 के बाद में कोई हिंसा नहीं है। अब हम जब ये इकाई से दिए, अब जब दहाई से देंगे तो इकाई के हिस्से की जगह को खाली रखेंगे। फिर 3 से 9 को ज़रब दिए, 3 9 27, 27 का 7, अब हासिल का हमारा क्या है 2। फिर 3 7 21, 22 23, 23 का 3, फिर हासिल का क्या है 2। 3 6 के 18, 18 में 2 जमा करे 20, 20 का 0, फिर हासिल का क्या है 2। फिर 3 पंजे 15, 15 और 2 17, तो 17 को फिर इस तरीके से लिखेंगे। ये दहाई के हिस्से से इस तरीके से ज़रब हुई। फिर सैकड़े के हिस्से से ज़रब करेंगे तो इकाई को छोड़ देंगे, दहाई को भी छोड़ देंगे। अब 4 को 9 से ज़रब देंगे, 4 9 36, 36 का 6 लिखेंगे, और हासिल का क्या लिखेंगे 3। फिर 4 7 28, 29 30 31, 31 का 1 हासिल के 3। फिर 4 6 के 24, 25 26 27, 27 का 7 हासिल के 2। 4 पंजे 20, 20 और 2 22। तो इसको जमा करते हैं अब 8, 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 1 और 2 3 और 1 4, 2 का 2। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल है। इसके बाद देखते हैं मश्की सवाल। मश्क 14 सवाल नंबर है 1, ज़रब कीजिए। यहाँ पर पहला सवाल है 327 ज़रब 92। अब यहाँ पर ये है हमारा मजरूफ या ये है मजरूफ, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 3 2 7 ज़रब 9 2। सबसे पहले हम इकाई के हिस्से से ज़रब देंगे, 2 से 7 को ज़रब दिए, 2 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब यहाँ हासिल का कुछ नहीं है, 2 तिया 6। अब दहाई के हिस्से से ज़रब देंगे तो इकाई के हिस्से का मकाम छोड़ देंगे। 9 7 63, 63 का 3 हासिल क्या है 6, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 24 का 4 हासिल के 2, 9 तिया 27 28 29, 4 5 और 3 8, 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 9 में 1 जमा करे 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 1 3। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में पहले हम लिखेंगे 8 0 7 और इसको ज़रब करेंगे 1 2 6 से। 6 7 42, 42 का 2 हासिल के 4, 6 0 0 0 में 4 जमा किए 4, 6 8 48। अब दहाई से ज़रब देंगे तो इकाई का मकाम छोड़ देंगे। 2 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 0 0 में 1 जमा करे, हासिल का कुछ नहीं, 2 8 16। फिर इकाई और दहाई का छोड़ दिए, 1 से 7 को ज़रब दिए 7, 1 से 0 को ज़रब दिए 0, 1 से 8 को ज़रब दिए 8। जमा कीजिए, यहाँ आया 2 4 और 4 8, 8 और 7 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1,
6 और 4 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10। सवाल नंबर 3 देखिए, 5 6 7 ज़रब 8 9 0। इकाई का हिस्सा 0 है, 0 से ज़रब देंगे तो 0 0 0 ही रहेगा। 9 दहाई का हिस्सा है तो इकाई का हिस्सा छोड़ देंगे। 9 सत्ते 63 का 3, हासिल का आया 6, 9 छिक्के 54, 55 56 57 58 59 60 का 0, हासिल का आया 6, 9 पंजे 45, 45 और 5 50 और 1 51। फिर 8 से ज़रब देंगे तो इकाई और दहाई का हिस्सा छोड़ देंगे। 8 सत्ते 56, 56 का 6, हासिल क्या है 5, 8 छिक्के 48, 48 और 5 53, 53 का 3, हासिल क्या है 5, 8 पंजे 40 और 5 45। 0 3 6 3, ये जमा का अमल कर रहे हैं। 3 और 1 4, 5 और 5 10 का सिफर, हासिल का 1, 4 और 1 5। सवाल नंबर 4 है, 4317 ज़रब 824। 4317 ज़रब 824। 4 सत्ते 28 का 8, हासिल के 2, 4 एकम 4 और 2 6, यहाँ कुछ नहीं बचा। 4 तिया 12 का 2, हासिल के 1, 4 चौक 16 और 1 17। अब दहाई से ज़रब देंगे तो इकाई का मकाम उसको छोड़ देंगे। 2 सत्ते 14 का 4, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब यहाँ हासिल का नहीं है। 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब सैकड़ा से देंगे तो इकाई और दहाई का मकाम छोड़ देंगे। 8 सत्ती 56 का 6, हासिल के 5, 8 एकम 8 और 5 13 का 3, हासिल के 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5, हासिल के 2, 8 चौक 32 33 34। 8 6 और 4 10 का सिफर, हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10 और 7 17 का 7, हासिल का 1, 8 और 5 13 और 1 14 और 1 15 का 5, हासिल का 1, 4 और 1 5 और ये 3।